Good morning, all of you. Welcome to Let's Understand the Mathematics. This is my YouTube channel. So, I will talk about the subject of mathematics and I will try my best. I make awesome videos how to understand the subject of mathematics. So, this is my first video and I introduce myself. So, first of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself and talk on the topic of mathematics. So, I am Vinit Pratap Singh. I am a mathematics tutor and I teach maths of academic classes, BSc, MSc, NET JRF, GATE and IIT JAM. So, actually, syllabus in सबका same है. So, and I will talk about a little bit about NET JRF. So NET is a National Eligibility Test and JRF Junior Research Fellowship. So after after passing this exam, you are eligible for assistant professor in government colleges, like private colleges, government colleges, and like that. So, and junior research fellowship, actually central government provided you scholarship for research if you enrolled any several institute like IIT, NIT, and deemed university, central university, state university. So central government provide you scholarship per month, 34,000 I think. So depend on your college, IIT college, NIT, deemed university, state university, like that, and rural and urban areas depend on. So, so guys, let's talk about the problem that that you face, how to understand the subject of mathematics. So first of all, my thinking is mathematics is not only or just how to not only and or just learning, teaching, reading, and memorizing. So my thinking is and my suggestion is first of all, uh, you, first of all you think about think about this subject and topic of mathematics and feel this subject, and you know that concept is a very important concept, is a limited, and questions are unlimited. This is a very important point. So concepts are limited but questions are unlimited. So please work on concept and build your knowledge. So this is a very important, and this is a very important point for our lower to higher education and for competitive exams. So guys, let's talk and discuss the problem point to point. तो इसमें सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा, और मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा किड्स, बच्चों के लिए. तो बच्चों से मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड एलकेजी यूकेजी से जो फर्स्ट में जा रहे होते हैं, तो उनको आपको कैसे डील करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जड़ें वहीं से मजबूत होती हैं. हमारे रूट्स जो होते हैं, हमारी जो जड़ें होती हैं, हमारा जो बेसिक बनता है वो वहीं से बनता है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली किड्स के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि बच्चों का माइंड जो होता है वो क्रिएटिव माइंड होता है, बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है. उनके अंदर कुछ ना कुछ सीखने की एक क्षमता होती है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. वो आपने देखा होगा कि जब बच्चे पेंटिंग करते हैं तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट समथिंग, कुछ ना कुछ अलग, वो लोग अपने अपने एक हुनर को, अपने एक जो भी उनके माइंड में चलता है वो उस पेंटिंग में उसको बनाते हैं. तो कुछ ना कुछ डिफरेंट वो बना देते हैं. तो एक सीखने की क्षमता उनमें बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है उनका, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यू नो दैट. सो तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय सजेशन इज़ कि आप उनको डेली लाइफ से कनेक्ट करें, और उनको ये जो सेल फोन्स हैं, फ़ोन है, दिस इज़ अ वेरी बैड टूल एंड ये बहुत ही गंदा टूल है, बहुत हार्मफुल है फॉर बच्चों के लिए. मैं तो कहूँगा कि बड़ों के लिए भी है अगर उसका सही यूज़ नहीं हो रहा है तो उनको डेली लाइफ से कनेक्ट करें. और मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, अभी तो वो बहुत छोटे हैं, वो नहीं समझते हैं, नॉट अंडरस्टैंड द
हायर मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, व्हाट इज़ दिस। तो वो ये चीज़ें नहीं समझते हैं अभी। तो आपको उनको रियलाइज़ कराना है, उनको फील कराना है, उनको सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट नेम नहीं समझाने हैं, अभी सिर्फ उनको एक फील कराना है कि मैथ्स क्या है, मैथ्स हमारी डेली लाइफ में हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। आपके सराउंडिंग में, आपके चारों ओर इतनी चीज़ें हैं कि आप उनको अपना टाइम निकाल कर, खासकर पेरेंट्स जो मतलब बिज़ी रहते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलता है तो वो फ़ोन में ना देने के बजाय अपने बच्चों में दें। और काम करते करते भी आप अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखा सकते हैं। लाइक दैट, जैसे कि हमारे घर में फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है, टेबल फ़ैन है, टीवी है, बहुत सी चीज़ें हैं, चेयर्स है। एंड नेचर के बारे में बता सकते हैं, पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं कि नेचर से हमें ये मिलता है। नेचर से एक्चुअली आप जब उनके नेचर के बारे में बात करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। O2 है, CO2 है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। बच्चे बहुत ही ईज़िली और बड़े इंटरेस्ट के साथ अगर आप बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे तो वो चीज़ों को समझेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे कि उनको पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, एट्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो शायद वो थोड़ा सा मोबाइल से दूर होंगे। और दूसरी चीज़ है कि मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स में उनको जैसे बहुत सी चीज़ें हैं। आप सीलिंग फ़ैन के बारे में बता सकते हैं कि बेटा ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब वो क्लॉक और एंटी क्लॉक में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा तो आप उनको घड़ी के सामने आप बता सकते हैं कि बेटा वो जो घड़ी जिस डायरेक्शन में सुई घूम रही है, दिस इज़ अ क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज आप दिखा सकते हैं कि जो सेकंड की सुई है वो क्लॉकवाइज राउंड कर रही है। एंड जो हमारा फ़ैन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें उनको समझा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लेफ़्ट टू राइट चल रही हैं, राइट टू लेफ़्ट चल रही हैं। एंड जो टेबल फ़ैन है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है। अब इतना डीप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्लॉकवाइज क्यों घूमता है, क्योंकि अभी वो नहीं समझ सकते हैं। पर लेकिन ये है कि बेसिक सेंस, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप उनको बता सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप शेप्स के बारे में उनको समझा सकते हैं। शेप्स के बारे में आप ऐसे नहीं कि एक नोटबुक में, या आप जो आपके पास वाइट बोर्ड्स हैं उसमें आप ड्रॉ कर रहे हैं कि बेटा दिस इज़ अ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। नो, उसको समझाने के बजाय आप उनको प्रैक्टिकली समझाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट से बहुत ही हाई फाई चीज़ें खरीद कर लाएं, आपके सराउंडिंग में ही इतनी चीज़ें हैं। मैच बॉक्स को आप उनको दिखा सकते हैं कि दिस इज़ अ क्यूबॉइड है, जिसे हम घनाभ बोलते हैं हिंदी में। उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, वो चीज़ें आप उनको डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेकर चीज़ें सिखा सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि बच्चे इन चीज़ों से खेलते भी बहुत हैं, इधर से उधर चीज़ें फैलाएंगे, उधर फेंकेंगे। तो इन चीज़ों से आप, अब जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो में आप डाइस देखते हैं, डाइस जिसकी जो बिल्कुल क्यूब की तरह होता है, क्यूब होता है वो, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप उन नंबर्स को वहाँ से भी आप उनको बता सकते हैं, क्यूब वो शेप्स के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बेसिक साइंस आप उनको एक डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि आप बुक्स से निकाला, बुक्स देख रहे हैं कि आप जैसे जैसे बच्चा फर्स्ट सेकंड में जा रहा है तो उसका मेंटली प्रेशर, जो प्रेशर है वो तो बढ़ रहा है, साथ में उसके बैक का लोड भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत लोड बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी बच्चों को इतना बुक्स के बारे में बताने के बजाय प्रैक्टिकली उनको समझाना चाहिए। क्योंकि इतना अभी लेवल हाई नहीं है अभी कि, और ना ही किसी चीज़ का, किसी टॉपिक का लेवल इतना हाई है कि हम उसको प्रैक्टिकली ना समझा पाएँ। यहाँ तक कि आप सोच सकते हैं कि हम 8th और 9th क्लास की मैथमेटिक्स भी इतनी हाई फाई नहीं है कि हम उसको प्रैक्टिकली ना समझा पाएँ, हम उसको डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाएँ। हायर क्लासेस की बात अलग है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, बट जो आप 9th क्लास तक के अगर टॉपिक्स देखें, सब्जेक्ट देखें, बुक्स देखें, NCERTs हैं या और भी बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, तो आप उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, एक टीचर, एज अ टीचर अगर वो टीचर है तो वो थोड़ी सी मेहनत करके प्रैक्टिकली बच्चों को समझा सकता है। गवर्नमेंट स्कूलों में तो ये हालत है कि
वहाँ पर वैसे तो जो जूनियर स्कूल्स हैं छोटे बच्चों के लिए कोई भी एक गैजेट तक नहीं है कि बच्चों को बाय उस गैजेट के थ्रू सिखाया जाए। एबेकस जो थोड़ा सा गोलियों वाला होता है एबेकस, उसके वही थोड़े बहुत शायद पुराने रखे रहते हैं, उसी को थोड़ा सा समझा दिया जाता है उसी से। तो प्राइवेट स्कूलों में तो चलो फिर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को, आजकल की डेट में तो सारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, पहले की बात अलग थी, बट आज की डेट में सारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। माताएं भी एजुकेटेड है और फादर भी एजुकेटेड है। तो फादर चलिए बाहर चले जाते हैं, बट माताएं जो घर में हैं अपना फ्री टाइम निकालती हैं, तो उस फ्री टाइम में फ़ोन यूज़ करने के बजाय आप बच्चों को टाइम दे सकती हैं और उनको बता सकते हो, आप पिक्चर्स के बारे में बता सकते हो, नेचर्स के बारे में बता सकते हो, डेली लाइफ से बहुत सी चीज़ें हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं और समझदार हैं, आप लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, ये तो था किड्स के लिए कि कैसे कैसे आपको डील करना है। अब जैसे कि टेबल है, 2 की टेबल बेटा लर्न कर लो, नहीं तो आपका फर्स्ट में एडमिशन नहीं होगा, सेकंड में एडमिशन नहीं होगा। तो टेबल लर्न करने से कुछ नहीं होगा ना, आपको उनको तरीका बताना होगा कि लर्न अपने आप हो जाएगा। जब आप उनको एक पैटर्न बताएंगे, एक सीक्वेंस बताएंगे कि इसको लर्न करने का ये तरीका है, बाय मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाय एडिंग कर सकते हो। एडिंग करके अगर आप उसका तरीका बताते हो टेबल को लर्न करने का, या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे कि टॉफ़ीज़ हैं या कोई भी प्लास्टिक के खिलौने हैं छोटे मोटे वो है, या तो आप नोटबुक में भी आप उनको एडिंग के थ्रू, ऐड के थ्रू या मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, क्योंकि ऐड और मल्टीप्लिकेशन बच्चे थोड़ा सीख जाते हैं जल्दी, तो ऐड और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उनको टेबल को बनाना, टेबल को कैसे हम लिखते हैं, कैसे सोचते हैं, वो चीज़ आप बता सकते हैं उनको, वो ईजिली कवर कर लेते हैं। लेकिन लर्न करने से डेली उनको बैठा दो लर्न करने के लिए, तो दिस इज़ नॉट राइट थिंग, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को समझाने का। तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना है और टीचर्स को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो एफर्ट करते हैं और बाय प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो अब जैसे कि 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, जैसे जैसे हम लेंसेज का, साइंस में आपने देखा होगा, फिज़िक्स में, एक्चुअली मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो साइंस में आपने देखा होगा जब हम लेंस की बात करते हैं, जिसमें हम कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, उत्तल और अवतल, तो हम उनको वो चीज़ समझाने के बजाय, उनको बाय प्रैक्टिकली दिखाने के बजाय हम बस इतना बता देते हैं और दिखा देते हैं, बस खाली एक लेंस लाए और दिखा दिया कि बेटा ये बीच में मोटा है और ये साइड में पतला है, दिस इज़ अ उत्तल लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा लेंस दिखा दिया कि बेटा ये बीच में पतला है, साइड में मोटा है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस सॉरी, एंड अवतल लेंस। तो दिखाने से ये चीज़ें बच्चा खाली बस उसको समझ जाता है और कॉपी कर लेता है माइंड में, हाँ ठीक है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है, दिस इज अ क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरे लेंस को उसने मान लिया कि बीच में पतला होता है, साइड में मोटा होता है, दिस इज अ कॉन्केव लेंस। अब एक ब्लैक बोर्ड में, वाइट बोर्ड में एक फिगर बनाते हैं और फिर एक इन्फिनिटीज रेज हम देते हैं और बताते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ से टकराती है और फोकस पॉइंट पर होकर जाती है। मतलब कैसे इसको एक, कैसे वो रेज आ रही है, वो लेंस ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो ऊपर से टकराने के बजाय सीधा नीचे फोकस पॉइंट पर जा रहा है। तो ये बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनके माइंड में, उनको समझ में नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आया। और रही बात एक्सपेरिमेंट की, तो वो हमें 11th और 12th में लैब में मिलता है जाके, लेकिन वो तो चीज़ें समझाई नहीं गई हैं, उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चीज़ों को आगे एनालिसिस करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी उनको सही से नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। वो रेज ऊपर से आती है और कॉन्वेक्स लेंस में टकरा कर ऊपर से वो फोकस पॉइंट पर जाती हैं, क्यों जाती हैं, ऐसा अभी उन लोगों को समझ में नहीं आया। तो दिस इज़ नॉट राइट थिंग। उनको बाय प्रैक्टिकली, मैंने कहा ना कि हमारे 9th क्लास तक या 10th क्लास तक ऐसी कोई भी टॉपिक नहीं है, 12th में भी ऐसे बहुत से टॉपिक हैं, सारी चीज़ें कनेक्ट हैं वहाँ से, नहीं है कि हम बाय प्रैक्टिकली उनको ना समझा पाएँ। तो आप
एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं और वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस पड़े हैं जो इन चीज़ों को, लाइट के चैप्टर्स को बहुत ही एक अपनी जो डेली थिंग्स की जो बेकार और वेस्टेज, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसके थ्रू इस चीज़ को समझाया गया है। मैंने भी एक वीडियोस में ऐसा बहुत सी चीज़ें देखी हैं और समझी हैं मैंने इस चीज़ों को। अब जैसे कि आप कोई भी एक प्लास्टिक या एक कोई भी एक फ्लेक्सिबल चीज़ आप ले सकते हैं। मैं लेंस के बारे में समझा रहा हूँ। कोई भी एक फ्लेक्सिबल चीज़ ले सकते हैं आप, लाइक दैट। जैसे कि मैंने एक ये वाइट पेपर लिया है, दिस इज़ अ वाइट पेपर। ये एक वाइट पेपर लिया मैंने, इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं 2 होल्स करूँगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये मैंने 2 होल्स किए हैं, लाइक दैट, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जब इस टाइप से 2 पेंसिल्स का या पेन का या 2 स्टिक्स का यूज़ करो और अदरवाइज़ नहीं करते हो, जब आप इसको बैंड करते हो, जब आप इसको इस टाइप से बैंड करते हो, तो ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, बाहर को आ रही है, ये बैंड हो रहा है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि दिस इज़ अ, तो आपका ये जो पेंसिल्स हैं उनकी डायरेक्शंस कहाँ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, लाइक दैट, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। और इस टाइप क्या हो रहा है कि इस साइड से जो आपकी स्टिक थी, इस साइड से जो स्टिक्स थी, रेज आपकी इधर से आ रही है। आप समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ से जो पेंसिल्स आ रही हैं वो आपका एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है, एक पॉइंट पर जाकर मिल जा रही है। तो अब आप इसी पेंसिल्स को यहाँ से डालने के बजाय जब आप इसको ऐसे बैंड करेंगे, ऐसे करके ऐसे बैंड करेंगे, तो ये जो पेंसिल्स हैं, जो स्टिक्स हैं, वो फिर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। कहाँ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका है। ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हाउ टू टीच, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने कि कैसे आप लेंसेज के बारे में बता सकते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स टीचर, सो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। सो ये तो था किड्स के बारे में। सो अब मेरा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ जो 9th 8th और 10th क्लास तक की मैथ्स है। 9th 8th 10th तक की क्लास की जो मैथ्स है वो अधिकतर हमारे जो स्टेट सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, बैंक है, एसएससी है, एसएससी में बहुत अच्छी मैथ्स आती है। जितनी भी स्टेट टाइप के जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं उसमें मैथ्स आती है, अर्थमेटिक जिसे हम बोलते हैं। तो अर्थमेटिक का यूज़ मैंने देखा है कि अधिकतर स्टूडेंट बुक्स फॉलो करने के बाद उनके फार्मूलाज पे डिपेंड हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे लाइक दैट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस एंड जो दिशाओं पे बेस्ड होते हैं, दिशा पे, डायरेक्शंस पे, वो क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस हैं एंड क्लॉकवाइज जो घड़ी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एंड प्रोबेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, हम बोल सकते हैं। वैसे तो स्टैटिस्टिक में यूज़ हो जाता है, स्टैट में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इन मैथमेटिक्स ये ज़्यादा का अर्थमेटिक्स है और ये आपका जो क्वांटिटेटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, और कोई ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस बेसिक सेंस होता है। और क्योंकि 1 या 2 मिनट का टाइम हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को करने का मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कि उनका लेवल इतना हाई नहीं होगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस होगा, चीज़ों को थोड़ा सा वो इधर उधर कर देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो वो फार्मूलाज पे बेस हो जाते हैं। अब आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में 9th 8th क्लास की बुक्स में इतने ज़्यादा फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज के थ्रू ही उन क्वेश्चनों को बताया जाता है। टाइम एंड स्पीड में इतने सारे रूल्स हैं कि शायद आप उनको लर्न करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स में पजल हो जाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब 2 ट्रेन आपस में मीट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब एक ट्रेन जा रही है तो एक पिलर्स को कितनी स्पीड में करेगा एंड तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग एक रूल्स
लिया गया है, रूल्स अप्लाई किए गए हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज में बहुत ही अलग अलग फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं। तो अब ये बहुत ही बेसिक सेंस है। अब जब भी आप कभी मार्केट जाते हैं या शोरूम्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये टी शर्ट खरीदने पर आपको इतने % का डिस्काउंट है, और इसके साथ अगर आप 2 टी शर्ट और खरीदते हैं तो इन तीनों को मिलाकर आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक टी शर्ट खरीदने पर हमें फ़ायदा होगा या तीनों को एक साथ खरीदने पर हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है। दुकानदार अब वहाँ पे फॉर्मूला लगा के आपको नहीं बताएगा, एक बेसिक सेंस है, वो एक सोचता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। तो और एक होता है कि एक्सपीरियंस होता है। तो आपको विदाउट फार्मूला एक्चुअली एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में आपके पास एक तो एग्ज़ाम प्रेशर, नेगेटिव मार्किंग होती है क्वेश्चंस में, उसका प्रेशर, और फिर जो आपने इतने सारे टॉपिक्स कवर होते हैं एग्ज़ाम्स में अर्थमेटिक के, और उनके सारे फार्मूलाज को लर्न करने का प्रेशर, वो सारा प्रेशर जब माइंड में जाता है एग्ज़ाम हॉल में तो माइंड ऑटोमेटिक हैंग हो जाता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ऑटोमेटिक हैंग हो जाता है। तो आपको चीज़ें फार्मूला कहाँ से आए हैं, पहले आप उसको खुद ड्राइव करते हैं, चीज़ें ड्राइव होती हैं उनको, उसके बाद हम जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आता है उसके बाद हम एक फार्मूला जनरलाइज करते हैं, ठीक है। हम एक फार्मूला बनाते हैं कि इस फार्मूले से थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे तो अब एक ही टॉपिक में हर एक टॉपिक पे अलग अलग फार्मूलाज हैं, तो आप उनको कब तक लर्न करेंगे। सोचने वाली चीज़ है कि आप उनको कब तक लर्न करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको चीज़ों को फार्मूला बेस पर तैयार नहीं करना है, बेसिक सेंस है, आप उसको सोचें समझें और उसको फिर आप उस पर अप्लाई करें कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ऐसी यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं जो विदाउट फार्मूलाज, अर्थमेटिक के बहुत से चैप्टर्स को विदाउट फार्मूलाज अलग अलग, ये समझ लीजिए कि एक चालाक दुकानदार, एक ईमानदार दुकानदार, और क्या कहते हैं, अगर 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ों पे अलग अलग डिस्काउंट है तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, या 2 चीज़ें खरीदने पर हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में सारे टॉपिक्स यूट्यूब में ऐसे बहुत से ट्यूटर हैं जिन्होंने विदाउट फार्मूलाज आपको एक बेसिक सेंस, आपको सोचने की एक क्षमता, एक सोचने का एक तरीका आपको वहाँ पर बता रहे हैं। क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं विदाउट फार्मूला। तो वो ये नहीं कि यही क्वेश्चंस हो जाएंगे, या बस वो आपको एक सोचने का एक तरीका दे रहा है, एक बेसिक सेंस दे रहा है। ये नहीं कि आप अब उस वीडियोस में जा रहे हैं तो आप फिर से वही गलती कर रहे हैं, नहीं। उनको आप अगर देख रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखो कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ आप नोटिस करो वहाँ से। अब एक्चुअली एक ट्यूटर है मधुकर सैनी, अनअकैडमी में है, यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कराते हैं वो, और अर्थमेटिक की उनकी आई थिंक 52 सीरीज़ पड़ी हुई है, 52 अर्थमेटिक की। आई थिंक उन्होंने पूरा अर्थमेटिक कवर कर रखा है। आपके डाइस प्रॉब्लम है, कार्ड्स प्रोबेबिलिटी है, और बहुत सी चीज़ें हैं, पजल्स हैं, पूरा उन्होंने कवर कर रखा है। और विदाउट फार्मूलाज उन्होंने एक बीच में वो कहते भी हैं, खुद कहते हैं कि आपको मैं एक सोचने का एक तरीका दे रहा हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन करा दिए, 10 क्वेश्चन के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनको थोड़ा सा घुमा दो तो माइंड पजल हो सकता है। तो आप वहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं आएगा। आपने जो अभी बेसिक सेंस, जो आपने सोचा है, जो जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस को डील किया है, वो तरीका वहाँ पे काम आएगा। वो चीज़ अलग है कि आपको फॉर्मूला याद है उस टाइम तो आप लगा दो, बट वो एक समझाने का जो तरीका कि कैसे हम क्वेश्चंस में अप्रोच करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को सोचेंगे, वो तरीका उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा समझा रखा है मेरे हिसाब से। बाकी तो और भी वहाँ पे ट्यूटर्स हैं यूट्यूब में तो भरे पड़े हैं। आप एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो बहुत लोगों का माइंड का जो रिस्पॉन्स होता है, बॉडी रिस्पॉन्स होता है, वो सबका अलग अलग होता है। किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को कैसे समझ में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं डॉक्टर का ले लेता हूँ। कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो पड़ोसी कहते हैं कि नहीं एक्चुअली मुझे तो वो वाले डॉक्टर जो गली में हैं उनकी दवाई बड़ी शूट करती है, तो जब भी मुझे कुछ होता है तो मैं तो उन्हीं के पास जाता हूँ।
तो सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, सबका माइंड अलग अलग रिस्पॉन्स करता है, कौन कैसे जल्दी सीखता है, कौन कैसे सीखता है। तो आप उस चीज़ को देखें और समझें कि आखिर वो बताना क्या चाह रहे हैं। फॉर्मूलाज के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चंस अनलिमिटेड है। उन्होंने और हम जितना भी चाहें क्वेश्चंस को अनलिमिटेड बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। तो आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है, अपने कॉन्सेप्ट पर काम करिए। वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट एंड बिल्ड योर नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कभी आपने कोशिश की है, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी में अधिकतर क्वेश्चंस काय के होते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस हमारे कार्ड बेस पर होते हैं, जो हम कार्ड खेलते हैं, और डाइस प्रॉब्लम पे होते हैं, ठीक है। तो कभी आपने कोशिश की है कि कार्ड्स की एक गड्डी में घर पे लाकर उन कार्ड्स को अंडरस्टैंड करूं, उनको समझूं कि किस किस कलर के कार्ड्स हैं, उसमें इक्के कितने होते हैं, उसमें किंग कितने होते हैं, एंड ये सारी चीज़ें कभी एनालिसिस की हैं? बुक्स में देखने से नहीं होता है, बाय प्रैक्टिकली कभी आप कार्ड्स की गड्डी ले आओ। इतनी महंगी नहीं आती है, इतना तो हम खर्च कर देते हैं डेली लाइफ में खाने पीने में। तो कार्ड्स की गड्डी लाओ। कार्ड्स की गड्डी लाने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों के साथ खेलने लग जाओ। माई सेंस कि आप उसको समझने के लिए, बाय प्रैक्टिकली अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एज अ सेंस आपको बता रहा हूँ। तो ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ बाहर खेलने निकल जाएं कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, तो ऐसा नहीं करना है। कार्ड्स को यूज़ करना है आपको समझने के लिए। अब बहुत से बच्चे तो गेम्स भी खेलते हैं कार्ड्स के, तो आप कार्ड्स को लेकर आएँ, कार्ड्स को समझें। जिस टाइम आप कार्ड्स को समझ जाएंगे, कार्ड्स के कलर्स को, कार्ड्स का क्या क्या, उसमें कौन कौन किस किस टाइप के टाइप्स ऑफ कार्ड्स क्या क्या हैं, जिस टाइम वो समझ जाएंगे, कार्ड्स के आधी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। आधी प्रॉब्लम डाइस प्रॉब्लम है। डाइस की बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आप डाइस के जैसे 6 है, डाइस में 6 ऊपर है, तो जस्ट उसके अपोजिट नीचे कौन सा नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो उसको कॉपी में या बोर्ड में थोड़ा सा एक फॉर्मूला, एक तरीका लगाकर आपको बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन कभी आपने डाइस को घर में ला कर खरीद कर मार्केट से, लूडो गेम खेलने का मन होता है तो आप तुरंत जाते हैं, लेकिन अंडरस्टूड समझने के लिए कभी खरीद कर लाए? डाइस को कभी आपने घुमा कर राउंड करके, आपने ऐसे करके राउंड करके कभी चेक किया है? कभी देखा है कि 6 के अपोजिट में क्या है, 2 के अपोजिट में क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है? तो ये चीज़ें बेसिक सेंस हैं यार, आप खुद इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं, मार्केट से ला सकते हैं, डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, मार्केट में दुनिया भर के जो परसेंटेज का निकलता है कि आज ये डिस्काउंट है, आज वो डिस्काउंट है, इस पर भी आप अपनी एक थ्योरी जनरेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, यार आपको क्या खरीदने पर प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये सब तो मार्केट की चीज़ें हैं, डेली लाइफ की चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। सो आपको फॉर्मूले पे बेस नहीं होना चाहिए, आप फॉर्मूले को एक साइड रखिए और सोचिए कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी बताया है, अनअकैडमी मधुकर सैनी, हो सकेगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप सो कि आपको वहाँ से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो दैट्स इट। तो ये तो था मेरा सेकेंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट एक्चुअली दिस इज़ माय टॉपिक एंड प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो ये मेरा टॉपिक है। तो इस पर मैं बात करता हूँ कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए, जैसे कि आपको बीएससी बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स से, चाहे वो फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैं मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हैं फिज़िक्स से एंड केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से और केमिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं। जो मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में तो और इजी है चीज़ों को रिलेट करना, मैथ्स में एक बार के लिए टफ है, लेकिन फिज़िक्स में और इजी है। दुनिया भर की चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में, चारों ओर पंखा है, गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है भाई, क्यों, क्या रीज़न है उसका। नेचर से आप केमिस्ट्री को सीख सकते हैं, कौन सी गैस छोड़ रहा है, क्या ले रहा है, CO2 क्या है, वाटर में अगर H2 को अलग कर दें तो H2+ O2 आपको वाटर मिल रहा है। नेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। माय यूट्यूब चैनल नेचर्स लवर, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। और
तो आप इससे भी केमिस्ट्री को भी डील कर सकते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। आप नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, फिज़िक्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आपको चीज़ों को समझना है। और ख़ासकर अब मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट 12th स्ट्रीम में है एंड 10th क्लास से 11th से 12th फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं, बीएससी करते हैं। और बीएससी के बाद आप आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी से आप इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब होता है कि एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हैं। सो अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो आप नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अभी मैंने आपको बताया था, ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी के बाद कर सकते हैं। इसके थ्रू भी आप आईआईटी ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी के लिए। और बीएससी ग्रेजुएशन में भी आप आईआईटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आईआईटी में घुसने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि 12th में इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू जाते हैं। या बाई चांस आपका वहाँ नहीं हो पाता है तो आप ग्रेजुएशन करिए किसी अच्छे सब्जेक्ट से और उसके बाद आप आईआईटी जैम के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। तो आईआईटी में घुसने के बहुत से तरीके हैं। एंड तो बात करते हैं कि मैथ्स, तो प्योर मैथमेटिक्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डेली लाइफ से कनेक्ट करने का। हम उसको इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथ। और अप्लाइड में तो आप चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है एंड आपका एलपीपी है एंड सो ये आपकी अप्लाइड पोर्शन है। इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इनको भी इसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ प्योर पोर्शंस में भी आ जाता है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं और अंडरस्टूड होगे, समझ कर ही चीज़ों को करें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्योर मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आपकी 12th से ही स्टार्ट हो जाती हैं, 11th से स्टार्ट हो जाती हैं। बस ये चीज़ें कि वहाँ पे थोड़ा सा मिक्स होता है और आगे चलकर आपको पर्टिकुलर इन टॉपिक्स की एक अलग बुक्स मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि आप सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब टॉपिक एंड ये प्योर मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। सो सेट थ्योरी पे भी बच्चे बहुत जल्दीबाजी करते हैं। उसको सेट थ्योरी को तो बहुत ईजिली हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके सीख सकते हैं। आप दो सर्कल बना रहे हैं या अपने आसपास के दो नेबरहुड ले रहे हैं, अपने दो घरों को ले लो या अपने आसपास के आस पड़ोस को ले लो। तो एक जैसे कि होता है कि एक घर एक बड़ा सा एरिया है, उसमें एक घर है, फिर दो घर है, फिर तीन घर है, तो एक यूनिवर्सल सेट तैयार हो जाता है। एक कॉलेज के एग्जांपल्स हैं, स्कूल के एग्जांपल्स हैं, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, एक सेट तैयार हो जाता है। आप उसमें कॉमन करने के लिए सर्कल्स का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है, फिगर का उसमें बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। तो आप वहाँ से बहुत अच्छा डेली लाइफ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल टॉपिक। एंड सेट थ्योरी से बहुत सी चीज़ें बिल्ड होती हैं, बहुत सी चीज़ें बिल्ड होती हैं। हमारी नॉलेज बहुत अच्छी नॉलेज हमें मिलती है सेट थ्योरी से। तो सेट थ्योरी से धीरे धीरे वहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है 11th 12th। तो प्योर मैथमेटिक्स को प्लीज़ आप रटने के बजाय उसको पहले तो फील करें, उसको समझें। और जहाँ पर आपको लगता है यू फील, आपको जहाँ पर भी लगता है यू फील दैट, तो आप उसको वहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब जैसे कि 2D और 3D की बात करता हूँ मैं, 2D पिक्चर और 3D पिक्चर। अब 2D पिक्चर और 3D पिक्चर में आप एक फ़ोटो अपनी कैमरे से निकाल रहे हैं और अपनी निकाल लें, नहीं तो अपनी निकाल लीजिए। आप एक पिक्चर आप अपनी निकाल लीजिए और या किसी दोस्त की निकाल लीजिए और उसको बगल में खड़ा कर दीजिए। अब आप कोशिश करें उस फोटो में उसकी नाक पकड़ने की, उसके कान पकड़ने की, उसको एक स्लैप मारने की। सच में मत मार देना, आई एम जस्ट जोकिंग। तो सच में मत मार देना, ये एक मैं प्रैक्टिकल एक आपको सोचने का एक तरीका बता रहा हूँ। उसको एक स्लैप करने की या उसको छूने की। तो क्या आप ये चीज़ें फील कर पाएंगे? जो आप उसकी नाक पकड़ पा रहे हैं, उसके कान पकड़ पा रहे हैं, उसको आप टच कर पा रहे हैं, उसको स्लैप कर पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है 2D 3D, इन सभी में डिफरेंस है कि कैसे आप इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। आप नेचर घूमने जा रहे हैं, पहाड़ पर घूमने जा रहे हैं, आप बहुत मज़ा ले रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन
आप प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी हैं, नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिसर्च में जा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये नेचर को मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस चीज़ को, इस पूरे नेचर को एक कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ, तो फिर मैं इसको ना छू पा रहा हूँ, ना टच कर पा रहा हूँ, ना महसूस, सिर्फ देख पा रहा हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप 2D प्लेन, 3D प्लेन, कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ते हैं इसको, तो ये चीज़ आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चीज़ों को समझना है। जब एक्चुअली क्या होता है कि हाँ, जब आप अच्छी खासी फीस देकर आप नेट JRF की कोचिंग करते हैं, IIT JAM की कोचिंग करते हैं, आपको टीचर अगर कोई ऐसा मिल गया है जो आपको एक डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा रहा है, आपको समझा रहा है, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है। ये नहीं कि उन्होंने कहा कि आपको समझ में आ गया है बट आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए और आप गर्दन हिला रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको चीज़ों को समझना है, आपको क्वेश्चन करने हैं। जितना ज़्यादा आप पूछेंगे उतनी ही क्वेरीज आपके अंदर से निकलेंगी। आप और क्वेश्चंस करेंगे, आपको उनका जवाब मिलेगा। टीचर्स ऐसा नहीं है कि आपको खा जाएंगे, आपको मारेंगे, आपको डांटेंगे या साइड में ले जाके बोलेंगे भाई इतने क्वेश्चंस मत पूछा कर यार। तो ठीक है, किसी किसी टीचर्स के साथ हो जाता है, परेशान हो जाते हैं वो, तो लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अंदर का फियर बाहर निकालना होगा, डर अपना निकालना होगा। ये चीज़ नहीं सोचनी होगी कि क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं एक बेसिक सेंस का क्वेश्चन पूछूंगा तो बच्चे मुझ पर हंसेंगे। सो ये चीज़ें नहीं सोचनी है, क्योंकि फ्यूचर आपको अपना बनाना है, उनका नहीं। आपको एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करना है, वो तो ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप रह जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चंस करें, उनसे पूछें, चीज़ों को समझें, अंडरस्टूड करें। क्योंकि देखिए, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमारे पास ये दुर्भाग्य है कि शायद हम या टीचर्स कोशिश तो करते हैं बट उसको डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी मैंने देखा है ऐसे बहुत से टीचर हैं जो एक प्योर मैथमेटिक्स को भी डेली लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इस पर मैं भी काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इस पर मैं कि कैसे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। मैं प्योर मैथमेटिक्स में अभी भी मैं चीज़ों को ऐसे डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये एक अगर प्रैक्टिकली होता, बाय प्रैक्टिकली, जैसे कि आपने देखा होगा साइन का ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ हो गया, टेन का ग्राफ हो गया। आप जब IIT JEE मेंस की प्रिपरेशन, लोग IIT JEE मेंस की प्रिपरेशन में ही ये सब क्यों पढ़ते हैं यार? 11th-12th में ही इतना कुछ है, आप वहीं से फिगर्स को आप सीखना स्टार्ट करें। जब सर्कल पे हम साइन कॉस टेन की बात करते हैं तो कैसे रेडियस उसका ऐसे मूव करता है, कैसे वो आपको फ्लैक्चुएट करता है, मतलब इसका एक टाइम, एक पीरियड हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि साइन में जो उसका पीरियड है वो 2π है, क्योंकि तो उनका पाई है, तो ये अपने ही पीरियड में ऊपर नीचे अप डाउन करता रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझने वाली चीज़ें हैं। इसको आप फिगर्स के थ्रू अगर आप साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप फिगर्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे तो, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइन कॉस टेन इन सब का। तो अगर आप इनको फिगर्स के थ्रू जिस दिन समझ जाएंगे तो आप बड़ी सी बड़ी वैल्यू साइन की आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने देखा है कि मैं दिल्ली में भी होम ट्यूशन्स पढ़ाता था एंड कोचिंग्स थोड़ी बहुत मैंने ली थी पॉकेट मनी, जेब खर्च के लिए। तो बच्चों को अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू दे दूँ कि साइन 200π या साइन, चलिए जनरलाइज कर देते हैं, साइन nπ या साइन 270, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वहाँ उसको थोड़ा सा वो समझते हैं कि जो टीचर्स ने उन्होंने वो मोटा मोटा बता दिया है, उसको फिर निकालते हैं, फिर प्लस माइनस करते हैं, तब जाके वो उसका आंसर देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, रिटन एग्ज़ाम्स में ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये काम नहीं आएगा।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप चीज़ों को समझें, आप ग्राफ के थ्रू जाएं, ग्राफ के थ्रू बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। डायरेक्टली आप जिस टाइम आपके ग्राफ या 3 ही तो, थोड़े बहुत तो ग्राफ हैं, 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप उनको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ग्राफ के थ्रू फिर आप क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली आप डील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी प्योर मैथमेटिक्स में यही चीज़ें हैं, और आप इन कोर्सेज में जा सकते हैं मैथमेटिक्स से। 11th-12th के बाद बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कर सकते हैं। बीएससी के थ्रू आप आईआईटी जैम का एक एग्ज़ाम होता है, तो जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है, वो जैम होता है, जॉइंट एडमिशन टेस्ट। ये आप बीएससी सेकेंड ईयर में ही आप अपेयरिंग में वो फॉर्म डाल सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। सो उसके थ्रू भी आप आईटी जा सकते हैं, और अपना कैरियर असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस के लिए आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप नेट क्वालिफाइड हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको जॉब मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करके। वो टेम्परेरी वाली रिसर्च नहीं करनी है आपको, चीज़ों को समझना है, अच्छे से रिसर्च करना है जो होती है रिसर्च सही में। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना होगा इन चीज़ों को। और मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आपको समझा दिया है मैंने, और ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाती है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं कि यार इतना लंबा कौन देखेगा। सो दैट्स इट। सो नेक्स्ट वीडियोस में आई थिंक मैं आपको प्योर मैथमेटिक्स एंड जो ग्रेजुएशन 12th 11th और नेट जेआरएफ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। आपको रिसोर्सेज ज़्यादा कलेक्ट नहीं करने हैं, सेलेक्टेड रिसोर्सेज रखने हैं और बार बार अगेन एंड अगेन उनको पढ़ना है। तो कुछ अच्छी बुक्स हैं, उनके रिकमेंडेशन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छी अच्छी बुक्स रिकमेंड करूंगा और उनके बारे में आपको बता दूंगा। वो बुक्स आप ऑनलाइन या मार्केट से परचेस कर सकते हैं। स्टेट्स में तो आपको वो बुक्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ स्टेट्स में अधिकतर मेरठ और कृष्णा पब्लिकेशन चलती है। तो कुछ बुक्स हैं जो आप ईज़िली, बहुत ही ईज़िली आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी बुक्स हैं जिनसे आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। और आई होप सो अगर आप नॉलेज रखते हैं और मैथमेटिक्स लवर हैं तो बहुत सी चीज़ें आप विदाउट किसी हेल्प के, विदाउट एनी हेल्प आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत अच्छे फॉर्मेट में वो चीज़ें लिखी गई हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।